Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Roffel BBA College, Vapi, and I'm going to teach you elements of strategic management subject. And today in this session, we will continue our topic, that is competition analysis. Okay. Now, in earlier session, we discussed about the that is Porter five forces model, and in that first part is over. That is threat of entry. Okay. So, what is threat of entry? When the industry become profitable, then there will be entry of the newcomers in the industry. हैसन में सॉल्विस क्या होता है? दैट इज थ्रेट ऑफ द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म. बट there are some of the barrier also which prevent the entry of the new firm in the industry. Okay, so if this barrier to the entry is very high na, then the newcomers will not pose any serious threat to the entry. Okay, so हम लोग ने 6 source of barrier to the entry पढ़ लिया. That is economies of scale, product differentiation, capital requirement, cost disadvantage, then access to the distribution channel and the government policy. Now, in this session, we will continue the second part, that is bargaining power of buyer. Okay, so second forces, Porter five forces model ही हम लोग का क्वेश्चन चालू है. So in that, the second part, that is bargaining power of the buyer. Now, bargaining power of buyer always influence over organizations to shape their prices, then quality of the product and services offered, distribution channel used, and so on. Because buyers always bargain to lower down the prices, they always demanded for the differentiated product and so on. So firm have to decide the price as per the buyer's requirement. Then the firm have to design the quality of the product and services as per the buyer's specification. Okay, so if there is a powerful buyer group, then there will be the buyer's market and the producer's profit will always be suffer. Okay, यानी अगर इंडस्ट्री में बायर ग्रुप पावरफुल होगा, सो वो केसेस में पूरा मार्केट बायर का होगा एंड जो भी प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट है ऑलवेज बी सफर. दैट मीन्स व्हाट? प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट will become lesser and lesser. Okay, so bargaining power of buyer always influence over the organization to shape, to decide their price of the product, to design the quality of the product and services, as well as what type of distribution channel it is used. Okay, because जो भी कस्टमर है, जो भी बायर है, ऑलवेज बार्गेन करता है फर्म से कि प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करो, प्रोडक्ट ये टाइप का होना चाहिए, वो टाइप का होना चाहिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बायर स्पेसिफिकेशन द फर्म डिजाइन द प्रोडक्ट, दैट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो इफ buyer group it is much more powerful, then there will be buyer market and the producer's profit always be suffer. Okay, so in which cases the buyer group it is powerful? So there are certain circumstances in which buyer group it is powerful. Okay, so buyer group it is powerful in that, in following सर्कमस्टेंसेस. ओके, यानी कौन से केसेस में, कौन से सिचुएशन में बायर ग्रुप यानी कंज्यूमर्स, कस्टमर्स पावरफुल रहता है. ओके, सो बायर ग्रुप इज पावरफुल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. ओके, नाउ ये सर्कमस्टेंसेस आपको पढ़नी है. विच आर दे? फर्स्ट इज व्हाट? इफ द बायर परचेसेस इन अ लार्ज वॉल्यूम, if the product are standard or the undifferentiated, then the product form the component of its product and represent the significant proportion of the cost. They earn the low profits, product is unimportant, they pose the problem of backward integration. So these are the situation, these are the circumstances in which buyer group is powerful. Okay, so let me explain first, that is purchase in large volume. How? कि if buyer purchases in a large volume. Okay, so जो large volume buyer है ना are particularly powerful forces as they always bargain for extremely favorable term. Favorable term means what?
रिडक्शन इन द प्राइसेस। जस्ट एज्यूम मेरी इंडस्ट्री, मेरी फर्म है और आप मेरे बायर हो, आप मेरे कस्टमर हो। ऑल द स्टूडेंट्स आर व्हाट? कस्टमर्स। नाउ इफ द कस्टमर्स, उसमें से दो कस्टमर्स लार्ज वॉल्यूम में मेरे से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ओके। सो जो लार्ज वॉल्यूम बायर है ना, आर पर्टिकुलरली द पावरफुल फोर्सेस बिकॉज दे ऑलवेज बार्गेन फॉर एक्सट्रीमली फेवरेबल टर्म, यानी दे ऑलवेज बार्गेनिंग फॉर रिडक्शन इन द प्राइसेस, ओके। सो उसमें से कोई फर्म मेरी कंपनी से बहुत सारा क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है, सो ऑलवेज वो बार्गेन करेगा टू लोअर डाउन द प्राइस, टू लोअर डाउन द प्राइसेस, बिकॉज हमने आपकी कंपनी से इतना परचेज किया है, टू लोअर डाउन द प्राइसेस। सो इफ द बायर परचेज इन अ बल्क, if the buyer purchase in a large quantity, then the bargaining power of the buyer is higher. आया समझ में? So first situation is what? If buyer purchase in a large quantity or the large volume. Second is what? Products are standard or undifferentiated. स्टैंडर्ड और अनडिफरेंशिएटेड मतलब मेरी कंपनी का प्रोडक्ट और मेरी कंपनी का प्रोडक्ट और अदर कंपनी के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस है ही नहीं है। और जस्ट एज्यूम कि इंडस्ट्री में 50 कंपनीज है और 50 कंपनी के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंट है ही नहीं, ऑल द कंपनी के प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉमन प्रोडक्ट है। सो वो केसेस में भी बायर का बार्गेनिंग पावर क्या रह जाएगा? हाई रह जाएगा। So second situation is what? The products are the standard or the undifferentiated. That means if the products which a buyer purchases from the industry are standard or undifferentiated, so in that case also the bargaining power of the buyer is high because buyer are sure that they can find alternative supplier. So buyer play one organization against another organization. Okay, so in that case bargaining power of the buyer is higher. How? Just assume कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ओके। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्लेयर्स है। नाउ नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना, सो हर एक का जो कॉटन है, जस्ट एज्यूम कॉमन है, ओके। जो कॉटन वो लोग सप्लाई करते हैं ना, हर एक का क्या है? कॉमन है। नाउ एज अ बायर मैं क्या करता हूं, एक कंपनी के पास गया और उसने प्राइस बोला, अभी दूसरी कंपनी के पास जाऊंगा, थर्ड कंपनी के पास जाऊंगा, तो हर एक लोग का प्राइस बोल देंगे, ओके। अभी मैं क्या करता हूं, आई एज अ बायर मैं एक कंपनी को बोलता हूं कि ये कंपनी तो मुझे बी कंपनी तो मुझे इतने प्राइस में दे रही है, आपको ये प्राइस में देना है या नहीं देना है। सो ऑलवेज बायर क्या करता है? प्ले वन ऑर्गेनाइजेशन विद द अनदर ऑर्गेनाइजेशन, okay. So if the product are the standard or the undifferentiated na, so in that case buyer are sure that कि they can find alternative supplier, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो थर्ड, तो वो आराम से वो इजी से वो सप्लायर को फाइंड आउट कर सकता है। सो बायर ऑलवेज क्या करता है? प्ले वन ऑर्गेनाइजेशन विद द अनदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा कि दूसरी फर्म तो मुझे इतने प्राइस में दे रही है, आप क्यों इतने में देने वाले? सो मैं आपसे नहीं परचेस करता हूं। सो उसके पैनिक से फर्म क्या कर देगा? अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देगा। आया समझ में? सो इफ द प्रोडक्ट आर स्टैंडर्ड और अनडिफरेंशिएटेड, इन दैट केस ऑल्सो द बायर ग्रुप इट इज पावरफुल। थर्ड इज द प्रोडक्ट्स form a component of its product and represent significant proportion of its cost. That means if the products which a buyer purchase from the industry form a component of its product and it represent a significant proportion of its cost, then the buyers are likely to purchase the product for favorable prices. Okay, best example, TV picture tube, ओके जो टेलीविजन, जो फाइनल प्रोडक्ट है टेलीविजन, उसमें मेन कंपोनेंट पार्ट कौन सा है? टीवी पिक्चर ट्यूब, ओके। सो टीवी पिक्चर ट्यूब एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ये टाइप की फर्म ये सब करती है। सो इफ द प्रोडक्ट विच अ बायर परचेज फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉर्म अ कंपोनेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड इट रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट, so in that case buyer are always likely to purchase the product of favorable term. Just assume, say example, Sony television है, Sony कंपनी है which produces the television, okay. तो Sony कंपनी का जो टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है,
ओके ना, उसके लिए मेन कंपोनेंट्स पार्ट क्या होगा, दैट इज टीवी पिक्चर ट्यूब ना। वो टीवी पिक्चर ट्यूब वो दूसरी फर्म से परचेज करते हैं, सोनी टेलीविजन जो टेलीविजन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए टीवी पिक्चर ट्यूब मेन कंपोनेंट्स है एंड इट रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट। टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टीवी पिक्चर ट्यूब का मैक्सिमम कॉस्ट उसमें जा रहा है। ओके ना, वो टीवी पिक्चर ट्यूब वो दूसरे फर्म से परचेज कर रही है। ओके तो टीवी पिक्चर ट्यूब मेन कंपोनेंट्स पार्ट है और उसका जो प्राइसेस है और कॉस्ट है वो भी सबसे ज्यादा है। सो सोनी कंपनी परचेज द टीवी पिक्चर ट्यूब इन अ फेवरेबल प्राइसेस। ऑलवेज वो क्या करेगा, वो टीवी पिक्चर ट्यूब वाले को बार्गेनिंग करेगा कि हमको हमारा आपके सप्लाई का इनपुट को कम, प्राइस को कम कर दो, बिकॉज ये हम लोग का फिनिश प्रोडक्ट का मेन कंपोनेंट्स पार्ट है और ये हमारे फिनिश प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड कर रहा है। सो वो केसेस में कंपनी का जो बार्गेनिंग पावर है एज अ बायर ऑलवेज क्या रह जाएगा, हाई रह जाएगा। ओके लाइकवाइज इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी ऑल्सो ना, ऑटोमोबाइल कंपनी में जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है वो मेन पार्ट्स है, मेन। ओके और जो भी आप बाइक प्रोड्यूस करना है या कार प्रोड्यूस करना है तो उसमें जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है, उसका सिग्निफिकेंट कॉस्ट जाता है, मैक्सिमम कॉस्ट उसमें जाता है। सो ऑटोमोबाइल कंपनी ऑलवेज परचेज द ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स इन अ फेवरेबल प्राइसेस, यानी ऑलवेज वो लोग का बार्गेनिंग रहता है टू लोअर डाउन द प्राइस, टू लोअर डाउन द प्राइसेस। सो इफ द प्रोडक्ट form a component of its product and it represents the significant proportion of the cost, na, in that case also buyer group it is much more powerful. Clear? Next is what, earn low profits. That means if the buyer earn low profits, so in this case also buyer will be more price sensitive. Suppose मैं, आप एज्यूम करो कि सोनी टेलीविजन कंपनी है, ओके वो पिक्चर ट्यूब परचेज कर दे। सो बायर क्या बन गया, सोनी टेलीविजन। ओके ना, सोनी टेलीविजन का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज टीवी पिक्चर ट्यूब का प्राइस हाई है। ओके सो इफ द बायर अर्निंग लो प्रॉफिट्स, सो वो केसेस में बायर विल बी मोर प्राइस सेंसिटिव, यानी वो ऑलवेज सप्लायर ग्रुप को फोर्स करेगा टू लोअर डाउन द प्राइस, टू लोअर डाउन द प्राइसेस। बट इफ द बायर अर्निंग द हाई प्रॉफिट्स, यानी सोनी टेलीविजन अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कर रही है, सो वो केसेस में सोनी टेलीविजन विल बी लेस प्राइस सेंसिटिव। आया समझ में? सो इफ द बायर अर्निंग द लो प्रॉफिट्स, सो वो केसेस में बायर ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा कि प्राइस को कम करो, प्राइस को कम करो ऐसा। बट अगर बायर हाई प्रॉफिट अर्न करता है तो वो केसेस में बायर विल बी लेस प्राइस सेंसिटिव। क्लियर? Next is product is unimportant for the industry. That means where the industry's product, it is unimportant to the quality of the buyer's product. So in that case also buyer will be more price sensitive. That means they always bargain to lower down the prices. Okay. So example, एक heavy machinery manufacturing company है. Now heavy manufacturing machinery company के लिए जो कलर उसको पेंट करना, कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है। ओके और ये कलर करे या ना करे ना, वो मशीनरी के क्वालिटी को कोई भी अफेक्ट करने वाला नहीं है ना। जो ये कलर जो ये कंपनी है ना, जो टेलीविजन जो हैवी मशीनरी प्रोड्यूस कर रही है, वो कंपनी के लिए जो कलर है अनइम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हुआ। ओके एंड इट डज नॉट अफेक्ट एनी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो कंपनी परचेज अ कलर इन अ फेवरेबल प्राइसेस। ओके यानी जो कंपनी कलर परचेज करती थी, ओके तो कलर कंपनी को बोलेगा आप हम लोग को इतने प्राइस में देना हो तो दो, हम लोग परचेज करेंगे, नहीं देना हो तो मत दो, हम लोग उसको परचेज नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कोई भी अफेक्ट करने वाला नहीं। सो वो केसेस में अगेन बायर विल बी प्राइस सेंसिटिव। Clear? So if the industry's product it is unimportant to the quality of the product, so वो cases में buyer will be more price sensitive. Clear? And last important और term समझना अच्छे से, pause a problem of backward integration. Backward integration word समझना है। Okay?
ना आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे, उसमें एक स्ट्रेटेजी आएगा, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी कंपनी की. ओके, नाउ दिस वर्टिकल इंटीग्रेशन मे बी ऑफ टू टाइप, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. ओके, ये पॉइंट हम लोग बाद में समझ से पहले ये टर्म समझो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन. ओके, ना बैक यानी पीछे जाना. ओके, सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट, एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ सप्लायर के बिजनेस में एंटर हो जाना है. ओके, सपोज मेरी कंपनी मेरी कंपनी टेलीविजन प्रोड्यूस करती है. ओके, ना टेलीविजन प्रोड्यूस करने के लिए मेरे सप्लायर कौन मेन है, दैट इज टीवी पिक्चर ट्यूब. सो मेरी कंपनी खुद टीवी पिक्चर ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन. आया समझ में, क्लियर हुआ? सो टीवी पिक्चर ट्यूब टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ टीवी पिक्चर ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन. क्लियर? एंड द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट, जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दे एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ कस्टमर, यानी they develop their own outlets. Okay, they develop their own retail store, that is called as what, forward integration. Forward मतलब आगे जाना and backward यानी पीछे जाना. Okay, so यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, pause a problem of backward integration. Pause a problem of backward integration. That means if the buyer pause a problem of backward integration, then the buyer will dominate in dealing with the industry. आया समझ में कैसे? चलो यहाँ पे अगेन एग्जांपल लो, सोनी है. कौन सी कंपनी है? सोनी टेलीविजन कंपनी. ओके, और उसका सप्लायर कौन है? टीवी पिक्चर ट्यूब. टीवी पिक्चर ट्यूब उसका कौन है? सप्लायर है. ओके, नाउ सोनी टेलीविजन बायर हो गया. किसका बायर? टीवी पिक्चर ट्यूब का. यानी सोनी टेलीविजन ने टीवी पिक्चर ट्यूब परचेस किया, तो सोनी एज अ बायर एंड टीवी पिक्चर ट्यूब क्या है? सप्लायर है. अभी सोनी ने क्या प्रॉब्लम, सोनी क्या बोल रहा है? सोनी एज अ बायर पॉज अ प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन. यानी सोनी क्या बोलेगा? सोनी टीवी पिक्चर ट्यूब कंपनी को बोलेगा कि हम लोग खुद टीवी पिक्चर ट्यूब बनाना स्टार्ट करने वाले हैं. सोनी कंपनी टीवी पिक्चर ट्यूब कंपनी को क्या बोलेगा? हम लोग खुद टीवी पिक्चर ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो जो यहाँ पे टीवी पिक्चर ट्यूब कंपनी से, वो तो प्रॉब्लम में आ जाएगी, बिकॉज जो सोनी उससे परचेस करता था, अभी तो वो खुद बनाना लग जाएगा. सो हम लोग का प्रोडक्ट कहाँ पे सेल होगा? हम लोग से वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा. तो वो केसेस में सोनी ऑलवेज बार्गेनिंग करेगा, टीवी पिक्चर ट्यूब कंपनी को बार्गेनिंग करेगा टू लोअर डाउन द प्राइसेस. यानी buyer will dominate in dealing with the industry. So if the buyer pose the problem of backward integration, then the buyer will dominate in dealing with the industry. आया समझ में? So these are the circumstances के in which buyer group it is more powerful. So which are they? अगर buyer large quantity में purchase करता है, अगर बायर जो भी प्रोडक्ट परचेस करता है वो अनडिफरेंशिएटेड है, कॉमन प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड है, यानी बहुत सारे सप्लायर है उसके, सो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. थर्ड, अगर बायर जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है मेन कंपोनेंट्स पार्ट है और फिनिश प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट उसका है, तो वो केसेस में बायर एकदम प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा. ओके, फोर्थ, अगर बायर का प्रॉफिट लो है तो वो केसेस में भी वो प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा. अगर बायर प्रोडक्ट परचेज करता है वो अनइम्पॉर्टेंट है टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट परचेज करे या ना करे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो केसेस में भी बायर बिकम मोर प्राइस सेंसिटिव. एंड अगर बायर पॉज द प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी बायर खुद बोलेगा कि आप जो हम लोग को सप्लाई करते हैं ना वो प्रोडक्ट हम लोग खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे, सो वो केसेस में भी बायर बिकम मच मोर पावरफुल. Okay, so these are the circumstances. So second forces is what? Bargaining power of buyer. Clear? Okay, thank you. Now in next session we will continue third, that is bargaining power of the supplier. Bye, take care.